नमस्कार छात्र छात्री माने प्रथमे आउ एक नुआ क्लास को बा आज आम यूनिट 1 लो जो मेजर पेपर अच्छे मेजर पेपर रो यूनिट 1 अच्छे बेसिक इकोनॉमिक्स बा बेसिक इकोनॉमिक रो आज आम यूनिट 1 पाठ पढ़िबा जोटा कि मु तुमको मोर इंट्रोडक्शन क्लास रे तुमको कहितली कि एटा मोर प्रत्येक दिन क्लास चलिबो यूनिट वाइज बेसिक इकोनॉमिक एंड इंडियन इकोनॉमिक रो आज मोर प्रथम क्लास बेसिक इकोनॉमिक रो तो बेसिक इकोनॉमिक जो प्रथम क्लास रे मु तुमको आज प्रथम यूनिट रो प्रथम क्वेश्चन बा यूनिट 1 लो प्रथम क्वेश्चन अछि तमरो डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आज हमें यार ऊपर पाठ पढ़िबा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सब्जेक्ट मैटर कौन इकोनॉमिक रो सब्जेक्ट मैटर कौन हमें काहे कि जे इकोनॉमिक्स को पढ़िबा यार सब्जेक्ट मैटर को बुझिबा एवं सब किछि हमें धीरे धीरे क्लास टी को देखिबा एवं आगो को हमें जीवा आगे वर्तमान मु तुमको टिके सिलेबस टिके नहीं जाउची सिलेबस बेसिक इकोनॉमिक रो 1 लो सिलेबस को देखिबा तापर हमें ये सिलेबस जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अछि तारि पर हम आज पढ़िबा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तापर और 10 प्रिंसिपल अछि आगो को जीवा हमें ये जो 2020 सिलेबस अनुसार बा एनईपी सिलेबस अनुसार हम पाठ पढ़िबा इंट्रोडक्शन क्लास रे तुम मन को इकोनॉमिक्स कोन कहि देइथिली आज हम पढ़िबा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स देखो प्रॉपर्ली नोट हे छी तुम माने खाता पेन धरि के नोट करिवो प्रथम कथा कहूँ द वर्ड्स इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड oikos oikos means household বা গৃহ and nomos means management বা পরিচালনা therefore economic means household management গৃহর পরিচালনা যেମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯଦି ମୋର 100 ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ ଥାଏ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ କୋଉ ହେଡ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କୋଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି ମୋର ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରିତୃପ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଗୃହର ପରିଚାଳନା ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ये ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି oikos and nomos oikos ମାନେ ହେଲା ଗୃହ nomos ମାନେ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ oikos ମାନେ ହେଲା ଗୃହ nomos ମାନେ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା oikos ଏଇଟା ହେଲା nomos ମାନେ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ oikos ମାନେ ହେଲା ଗୃହ ବା ହାଉସହୋଲ୍ଡ nomos ମାନେ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ therefore economics means household management ବା ଗୃହର ପରିଚାଳନା according to Leonard Robbins जो लियोनार्डो रॉबिन्स ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ economics is the science which study human behavior as a relationship between unlimited ones and scarce resources having alternative use ବା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଯୋଉଟା ହେଲା scarce resources scarce ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ଇଚ୍ଛା unlimited ones କିପରି ପୂରଣ କରାଯାଏ ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିବି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ବି ନା କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବଟା ଅସୀମ ରହିବ ସପୋଜ ତମେ ମାନେ ସିନା ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛ କଲେଜକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କି ବାଇକ୍ ନେଇକି ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ନେଇକି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ପାଇଯିବ ତାପରେ ତମେ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୋଟେ କାରଟେ ନେଇକି ଆସିବ କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ रिसोर्सेस आर लिमिटेड तुम पाखर रिसोर्सेस तुम पाखर संबल बहुत कम बुझिपार कथाटा
तो ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ କିପରି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଇକୋନୋମି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟର ଇଏ ଘରର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଚାକିରି କତୁରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଭୂମିକା। ଏ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଟା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି। ଏକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। The subject matter of economics means the scope of economics. Scope means ପରିସର। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଟା କୋଉ ପରିସର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି ଇଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, କନଜମ୍ପସନ୍, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ and economic development of goods and services। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କନଜମ୍ପସନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। First one is production, उत्पादन। Production कौन ना, production means creation of goods and services, creation of goods and services to satisfy human wants। ଆମର ଯେଉଁ human wants ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ satisfied କରିବା, କେମିତି ଆମେ satisfied କରିବା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ଅଛି, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ and ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନେ ସେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ and how to produce, what to produce, how to produce, for whom to produce। what to produce means କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, how to produce କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, from whom to produce କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କ'ଣ, ଧର ସପୋଜ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କିପରି ନା ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର, କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍, ଏ ଚାରିଟି ଆମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଦରକାର। ହାଉ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା କିପରି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ। ଫୁଡ୍ସ ତ ନେସେସରୀ, ରାଇସ୍ଟା ନେସେସରୀ। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ୱାଜ କନଜମ୍ପସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଉପଭୋଗ। କନଜମ୍ପସନ୍ ମିନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍। ସବୁକିଛି ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। এই ইকোনমিক ଷ୍ଟଡି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିଅର, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଯେଉଁଟା ହେଲା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିଅର। ୟୁଟିଲିଟି, ଉପଯୋଗିତା ପାଇବା, ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଚାହିଦା, ଏଇସବୁ ଦରକାର ଆମକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ହେଲା ବିନିମୟ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମିନ୍ସ ବାଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଧର ମୁଁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଧାନକୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଗହମ ଆଣିବି, ବା ଆମେ ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପଇସା ଆକାରରେ, ମନି ଆକାରରେ ପାଇଯିବି। ଗହମକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେବେ, ସେଇ ମନିକୁ ମୁଁ ଗହମ ବଦଳ କିଣିପାରିବି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗହମକୁ ବିକିକି ମନି ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ସେ ପୁଣି ଧାନକୁ କିଣିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଇଏ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି ନା, ଷ୍ଟଡି ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା, ମାର୍କେଟ ହେଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିବ। ତାପରେ ହେଲା ନେଚର, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମିନ୍ସ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। କେଉଁ ନା ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କହୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
एंड एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप लैंड है लैंड देके आम कौन पाइबा यहाँ सब फैक्टर्स कौन फैक्टर सर्विसेस 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 ये फैक्टर्स पेमेंट्स फैक्टर पेमेंट मन रखी छे फैक्टर पेमेंट कौटा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये सब है फैक्टर सर्विसेस रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब है फैक्टर पेमेंट्स तुम जो 2 सेक्टर 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ो से सब ब्रीफली जापर बुझीगला लैंड कौन प्रोवाइड करुच्ची लैंड बदल लैंड बदल कौन पाँच रेंट पाँच लेबर बदल मजूरी बा वेज पाँच कैपिटल बदल इंटरेस्ट जोड़ा सुध पाँच एंटरप्रेन्योरशिप बदल कौन पाँच प्रॉफिट पाँच ओके जीवा आगू पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक स्टडी गोटे टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक डेब्ट बजेट ये जो कहली हम घर बजेट को नहीं कि आम देशर बजेट पर्यंत ये सब कौटी पड़े ना पब्लिक फाइनेंस रे पब्लिक फाइनेंस अच्छी तुम सेमिस्टर 5th सेमिस्टर अच्छी आई थिंक्स तो तुम से पब्लिक फाइनेंस रे जान टैक्सेशन उपर पाठ पढ़ो पब्लिक एक्सपेंडिचर उपर पब्लिक डेब्ट उपर बजेट उपर ये सब तुम से पाठ पढ़ो नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलप ये गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलप ये गोटे स्कोप कहार आम इकोनॉमिक गोटे स्कोप ये भी गोटे विषय अच्छी यार गोटे बही अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1 अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 अच्छी राइट स्टडी ये हम कौन कौन पढ़ा नेशनल इनकम जो जातीय तुम मैंने जानते एम्प्लॉयमेंट जानते पॉवर्टी रिडक्शन इकोनॉमिक वेलफेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब कौन कर तुम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाठ पढ़ बुझेगा कंप्लीट्स ना आम जानिले सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स तार परिसर ये सब ना ये सब भी प्रोडक्शन है कंजप्शन है एक्सचेंज मन रख एक्सचेंज है आ कौन ना तुम डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक फाइनेंस यही सब तार गोटे गोटे स्कोप आउ कौन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे आम से सब्जेक्ट मैटर उपर ना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स रही से सब विभिन्न प्रकार डेफिनेशन गिवन करते सब तुम मैंने +2 पाठ पढ़ी प्रथम हूँ आडम स्मिथ होती वेल्थ डेफिनेशन बा संपद संज्ञा देते ये जो आडम स्मिथ होती जड़े फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आम जो इकोनॉमिक्स रो फादर होती आडम स्मिथ मन रहा ये जो गोटे बुक देते से बुक रो ना कौन रही से बुक रो ना है द वेल्थ ऑफ नेशन जोटा 1776 मसीह देते 1776 मसीह मन रख इनको मत अनुसार इकोनॉमिक द साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक हूँ साइंस ऑफ वेल्थ संपदर संज्ञा बा कौन कहीपर धनर विज्ञान तुम मैंने कहीपर कौन कहीपर धनर विज्ञान यार मेरिट्स कौन भल गुण कौन ना मेरिट्स है इंपोर्टाट ऑफ वेल्थ है एनकरेज प्रोडक्शन अधिक एनकरेज करवा डिमेरिट्स इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर जो वेलफेयर अच्छी कल्याण जोटा अच्छी सेटा को इग्नोर करथिले केवल ये कौन करथिले ना वेल्थ उपरे संपद उपरे आउ प्रोडक्शन उपरे व्याख्या करथिले किंतु ये गोटे यार प्रोब्लेम्स मध्य कहि परिबो एटा ह्यूमन वेलफेयर टा गोटे तांकर प्रोब्लेम डिमेरिट्स जोटा दोष जोटा आमे नेक्स्ट आल्फ्रेड मार्शल्स ये कौन करथिले वेलफेयर डेफिनेशन गिवन वेलफेयर डेफिनेशन देथिले जोटा ओडिया रे कहबा आमे कल्याण संज्ञा कौन कहबा आमे कल्याण संज्ञा ये बुक लिखी थे बुक ना कौन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 सी देते 1776 ये देले 1890 टिके खाली नजर पकई दो ये देले 1776 सी देले केबे 1890 मन रखि दो ये कौन कहले ना इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ये बेसिकली कल्याण ऊपर जनमंगलकारी ऊपर व्याख्या करथिले इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ ये किंतु कहले इकोनॉमी द ओनली फॉर साइंस ऑफ वेल्थ ये कौन कहले मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ ये मेरिट्स कौन ना फोकस ऑन ह्यूमन ओके ह्यूमन वेलफेयर ऊपर फोकस करथिले वेल्थ इज ए मीन्स कौन कहथिले वेल्थ इज ए मीन्स से किंतु कहले वेल्थ होची कौन वेल्थ होची इंपोर्टेंस वेल्थ होची साइंस ओके डिमेरिट्स नो वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली ये जो वेलफेयर रहा जनमंगल रहा
ୟାକୁ आम एक्यूरेटली के मेजर करें ये गोटे प्रोब्लेम्स रहा। नेक्स्ट है किए लियोलेन रॉबिन्स किए आइले रे लियोलेन रॉबिन्स ये कौन करते स्कार्सिटी डेफिनेशन देते कौन करते स्कार्सिटी डेफिनेशन बुक कौन से बुक ना हूँ an essay on the nature and significance of economic science 1932 रे देथिले 1932 मसिया देथिले ये कौन फोकस करथिले फोकस ऑन अनलिमिटेड वांट्स स्कार्स रिसोर्सेस अल्टरनेटिव यूजेस एंड चॉइस जो अनलिमिटेड वांट्स अछि तापर फोकस करथिले स्कार्स रिसोर्सेस ऊपर फोकस करथिले अल्टरनेटिव यूज एंड चॉइस ऊपर फोकस करथिले जिबा को नेक्स्ट सर टिके खाली कही दौर ना यहाँ तुम सब प्लस टू जान तुम या आउ टे ब्रीफली तुम नोट करके लिखिपर। तापर पॉल सामुएल्सन सी कौन करते ग्रोथ डेफिनेशन विकास संज्ञा गिवन कर फोकस थिला ऑन एफिशिएंट आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन वेलफेयर केमिति इकोनॉमिकटा ग्रोथ हम ह्यूमन वेलफेयर हम जनमंगल हम ये पर्यवेक्षण करते किए ना फॉल सामुएल्सन जे कि ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बा। तापर है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन नेचर अच्छी कौन प्रकृति जोटा आसो ना इकोनॉमिक जे सोशल साइंस ऑब्वियसली इकोनॉमिक हूँ सामाजिक विज्ञान एटा मन रखी थी आउ कौन ना इट इज बोथ पॉजिटिव साइंस हो पार आ कौन नॉर्मेटिव साइंस हो पार पॉजिटिव सिर्फ सकारात्मक आउ निर्देशात्मक है विज्ञान हो पार। इट इज ऑल्सो एन आर्ट ये गोटे कला बिकज इट प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ जोड़ा आम प्रैक्टिकल लाइफ आम इकोनॉमिक्स पढ़े मुझे कहली निज रियल लाइफ ऊपर आम इकोनॉमिक्स पाठ पढ़िया जमी घर बजेट कतु आरंभ कर देशर बजेट पर्यंत व्यवसाय कतु चाकरी पर्यंत ये सब आम इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो तो से मुझे ना ये गोटे कला ये गोटे आर्ट से इकोनॉमिक इट इज ऑल्सो एन आर्ट तुम कहीपर। नेक्स्ट आसो तार कनक्लूजन कौन ना द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज वेरी ब्रॉड इट इंक्लूडेड प्रोडक्शन है कंजप्शन है एक्सचेंज है डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब आम पाठ पढ़ी गले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इज द efficient use of scarce resources to achieve maximum human welfare जो शॉर्टेज अच्छी स्कार्स अच्छी रिसोर्सेस अच्छी ताको केमिति आमे अचीव करबा मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर पहुँचवा बा यही अर्थनीति आमको सठिक पसंद कौटा पसंद संपदर सठिक व्यवहार करवा और समाजर कल्याण बुद्धि कर सहायक होता है ये हूँ आम इकोनॉमिक्स ताने आउ थे मुझे ब्रीफली टिके खाली कहीदे जाऊँगी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन रहा कौन इकोनॉमिक्स कौटी डिराइव होता ग्रीक वर्ड डिराइव होती जोटा ओइकस एंड नॉमस ओइकस माने हाउस होल्ड नॉमस माने मैनेजमेंट बा इकोनॉमिक मीन्स है हाउस होल्ड मैनेजमेंट तापर पढ़ो तापर लियोलेन रॉबिन्स का कौन मत अनुसार ना अर्थनीति हूँ सीमित संपद जोटा स्कार्स रिसोर्सेस द्वारा असीम इच्छा जो अच्छी अनलिमिटेड वांट्स अच्छी ताको किमती पूरण करा जाय परिबो तार अध्ययन तापर अच्छी तुम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स रे सब्जेक्ट मैटर जो कहली कह को नहीं इंक्लूड कराई ना जोटा स्कोप परिसर यही परिसर जमी तुम घर जो घर थाए तार सब चतुर्पार्श्व तुम बाड़ दे था यही परिसरटा आमर यही सेपटे गले आउ कार जमी आम कहते जगह बाड़ी से भाया कौ परिसर क्या नहीं आम पाठ पढ़ा ना जमी कहली कंजप्शन क्षेत्र है प्रोडक्शन क्षेत्र है एक्सचेंज क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र है पब्लिक फाइनेंस क्षेत्र है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यही सब क्षेत्र को नहीं आम गोटे गोटे आम पढ़ले। नेक्स्ट आम या क्लास आम पढ़ा 10 प्रिंसिपल दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।